پہنچا. اسی طریقے سے اب ابراہیم کی خوشیاں ہیں جیسے ہم اللہ کھانا بناتے ہیں, انہیں بھی مکان بنانا ہے. بہت میرے دوستوں, انہیں بھی مکان بنانا ہے. اور ایک بات میں روز کہتا ہوں, میرے بزرگ بیٹے بہتر جانتے ہیں اپنے جوانوں کے لیے اللہ نے اپنے ہر نبی کو وہی معجزہ وہی کرامت دے کر بھیجی جو زمانے میں مشہور تھی, جو زمانے میں مشہور کی دامنے پر کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں بیان کرتا, زمانے میں جو مشہور چیزیں بھی وہی معجزہ دے کے بھیجا. کہا کہ جن لوگوں کو بھروسہ ہے ہم اسی بھروسے کو اور آگے بڑھا کر اپنے نبی کو کہ جیسا کام میرا نبی کرے گا تم نہیں کر سکتے. نہیں, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا, رسیوں سے سانپ بناتے تھے, لوگوں کو ڈراتے تھے. اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں, اب تم گھبرانا نہیں, جاؤ میرا نام لے کر دربار میں, وہ رسیاں پھینکیں گے سانپ بنے گا, تم ایسا پھینکنا ازدہار بنے گا, تم ایسا پھینکنا ازدہار بنے گا. تو وہی معجزے اللہ نے دیے. اب لوگوں نے جس زمانے میں جناب ابراہیم آئے اس زمانے میں بیمارداری یہ مکان بنانا بہت مشہور تھا. بڑے بڑے لوگ تھے بنانے والے, بڑے بڑے مکان بناتے تھے. کہتے ہم سے اچھا کوئی مکان بنانے والا ہے کیا, ہم سے اچھا گھر بنانے والا ہے کیا. اللہ نے کہا ایسا گھر بناؤں گا قیامت تک جس کا کوئی ثانی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے عزیزوں, قیامت تک جس کا کوئی ثانی نہیں. روایت کہتی ہے دیکھا مجمع کی طرف بہت سارے افراد تھے جو نبی کو مانتے تھے. کہا نہیں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لوں گا. کسی کو ساتھ نہیں لیا. لیا کسے؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو. ایک ایک پتھر کھا رہے ہیں اور رکھتے جا رہے ہیں اور ایک جملہ پڑھ رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دیواروں کو بلند کر رہے ہیں, بلند کر رہے ہیں. بس یہاں سے جملہ سماعت کریے گا. جناب ابراہیم اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں. اب یہاں سے آپ کے عقیدے کا امتحان ہے. جملہ میں پڑھوں گا, اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کی پاکیزہ سماعتیں کہاں تک میرے جملے کے ساتھ ہے. کون بنایا؟ دو معصوم بنا رہے ہیں خانہ کعبہ. ایک جناب ابراہیم علیہ السلام, ایک جناب ابراہیم علیہ السلام, ایک جناب اسماعیل علیہ السلام. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا ربی اللہ, اتنی بڑی آواز, آپ کو معصوم, اللہ کا بلند مکان, اللہ کا بلند گھر, بلانی کسی کو, ساتھ لینے کسی کو, ہیلپ کر دے گا, مدد کر دے گا, اسے بھی سوال مل جائے گا. کہا خاموش ہو جا, اور غور کریے گا. کہا خاموش ہو جا. میں نے کہا سرکار کیوں؟ کہا یہ گھر ہے اللہ کا, اسے بنائیں گے معصوم. ایک جملے دہراتا رہوں گا, جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ گھر ہے اللہ کا, اسے بنائیں گے معصوم. یہ گھر ہے اللہ کا, اسے بنائیں معصوم. اس میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا, اس میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. تو میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس گھر میں علی کو پیدا ہونا ہے, جب اس میں کسی غیر کا معصوم کا ہاتھ نہیں لگتا تو اللہ اسی علی کو ایک کافر کے گھر میں سلمان کرتے محمد والا. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا, چھٹے امام سے مولا سے, چھٹے آگے سے کسی نے پوچھا مولا مولا جناب ابو طالب کا ایمان کا خاموش ہو جا. مولا کے فضائل نہیں, مولا کے فضائل کا خاموش ہو جا. کیا مطلب مولا؟ کا سن, اگر ایک پتے پر پوری کائنات کے لوگوں کا ایمان اور ایک پتے پر ہمارے مطابق تب بھی ہمارے مطابق بھائی رہے گا. یہ ہے کمال کا معصوم نے بنایا, تو معصوم نے خانہ کعبہ پہ بنا دیا. عزیزوں کو بھی آپ نے غور کیا, جب بنایا خانہ کعبہ کو تو معصوموں نے, تو کسی کو اپنے ساتھ نہیں لگایا, خوب تنہا بنائے. کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ کہ اللہ نے حکم دیا.
अभी तो बहुत तवज्जो। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरा घर बनाओ, काबा बनाओ, बैतुल्लाह बनाओ, लोग ज़ियारत के लिए आएंगे, लोग हज के लिए आएंगे, अपनी मुरादों को लेके आएंगे, मैं अपनी मुरादों को पूरा करूंगा। किसने कहा? अल्लाह ने। किसने कहा? अल्लाह ने। बनाया किसने? तो मासूम ने। जिसे अल्लाह कहे नबी बनाए, जिसे अल्लाह कहे नबी बनाए, जिसे अल्लाह कहे नबी बनाए, जिसे अल्लाह कहे नबी बनाए। भाई जिसे अल्लाह कहे नबी बनाए, अगर उससे कोई मुनरिफ हो जाए तो ईमान खतरे में, तो जिसे खतरे में अल्लाह बनाए नबी बनाए। अगर कोई एक लम्हे के लिए कोई मुनहरिफ हो जाए तो दायरे इस्लाम से बाहर है। तो जिसे कबीर ने खुद अल्लाह बनाए और नबी बनाए, अब अगर कोई उससे मुनहरिफ हो जाए, दुनिया कहती है आप अली के इतने फज़ाइल बयान करते हैं, क्यों न बयान करें? इसलिए कि कायनात में अली की विलायत को हर शय ने कबूल किया और जिसने नहीं कबूल किया, एक पत्थर की क्या हकीकत है बताइए? एक पत्थर की क्या हकीकत है? पूछिए उलमा से। 5 नगीने अपने यहाँ पहने जाते हैं, पहचानो अपने मौला को। क्या है अली के विलायत? अब क्यों कहा गया है कि पहनो? और क्या आपने फिरोजा, अकील, दूल्हे नजफ, याकूत, अकील यमनी, जब इनके सामने मौलाए कायनात की विलायत को पेश किया गया तो पत्थर ने मुस्कुरा के कहा परवरदिगार मैं कबूल करता हूँ, परवरदिगार मैं कबूल करता हूँ, परवरदिगार मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह ने कहा अगर तूने कबूल कर लिया है तो फिर सुन, अब अगर कोई तुझे नगीने में तुझे अब अगर कोई तुझे अंगूठी में लगाकर पहनेगा, अगर मेरी बारगाह में एक रकअत नमाज पढ़ेगा तो 10 रकअत नमाज के सवाब दूंगा। हाय 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 हाय। महसूस करिए, एक नदीना विलायत को कबूल किया, आगे बढ़िए, बैत बन गया। जनाब इब्राहिम शिया है, घर बना दिया। जनाब इब्राहिम शिया है, कुर्बानी पेश कर दी। जनाब इब्राहिम शिया है, अपने माल का इंफाक कर दिया। तो भाई शिया जनाब इब्राहिम, उन्होंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, कुर्बानी में पेश कर दी। और कुर्बानी कैसे? जो कयामत तक लोग याद रखेंगे, कयामत तक लोग याद रखेंगे, ऐसी कुर्बानी पेश की है जनाब इब्राहिम ने। जनाब इब्राहिम ने कुर्बानी के लिए जनाब इस्माइल को लेके गए तो उस वक्त हर जमाने में शैतान ने तो बड़े मालूम था कि मोहलत मांगी थी और शक्लों में आ जाता था बहकाने के लिए। जब लेके पहुंचे मेला में तो एक लिबास में पहुंचा, इस्लामी लिबास में पहुंचा। तब मार पिया दरवाजे पर, जुमला सुनिएगा, जुमला पहुंच जाए तो दुआ से मांगिएगा। दरवाजे पर तक बीबी ने कहा मैं आपका हमदर्द, कहा क्या बात है? कहा कि आपके शौहर जनाब इब्राहिम आपके बेटे को कहाँ ले गए मालूम है? कहा बेटा है, ले गए होंगे। दूसरे क्या मतलब? कहा सिवा करने के ले गए हैं, बाहर निकलिए और बेटे को बचाइए। जैसे जुमले कहे फौरन बीबी ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे बीबी ने जुमले कहे उसके दिमाग हवा में, फिजाओं में उड़ने लगे। हाथों को जोड़ के कहा बीबी आपने कैसे पहचाना कि मैं शैतान हूँ? कहा जो नबी की बीबी को घर से बाहर जाने के लिए कहे वो सिवाय शैतान से कोई नहीं हो सकता। तो ये है जनाब इब्राहिम कुर्बानी दे दी, ठीक है। अब यहाँ से बहुत अहम बात, बहुत तेजी के साथ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिया कहा गया और इमामत का मंसब दिया गया। बहुत तवज्जो,
शिया के माना क्या है? आप कहेंगे चाहने वाला, पैरोकार, यही तो कहेंगे, यही तो तर्जुमा करेंगे, यही पढ़ा भी जाता है। शिया के माना क्या है? कहा शिया के माना है चाहने वाला, शिया के माना है पैरोकार, शिया के माना है इताअतगुजार, शिया के माने अपने रहबर के सामने सर झुका के ताज़ीमन झुक जाना। सरकार आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हुजूर आप जैसा फरमाएंगे हम वैसा करेंगे। यदि किसी का ताबे हो जाना शिया कहलाता है। बहुत बच्चों, मगर जब मैंने कामुसुल लगात पढ़ी तो उसमें अजीब जुमला, जब मैंने कामुसुल लगात पढ़ी तो उसमें अजीब जुमला लिखा था, किसी मर्द के पैरोकार को शिया कहते हैं। नहीं पहुंचे मेरे दोस्तों, नहीं अजीजों, ऐसे नहीं, किसी मर्द के पैरोकार को शिया कहते हैं। किसी मर्द के पैरोकार को इताअत करने वाले को शिया कहते हैं। अब मैं तारीख इस्लाम में किताब उठाई, मैंने जंगे बदर पढ़ी, कोई मर्द मिल जाए, जंगे महर पढ़ी, कोई मर्द मिल जाए, जंगे खंदक पढ़ी, कोई मर्द मिल जाए, जंगे नजरुल्लाह पढ़ी, कोई मर्द मिल जाए, जंगे हुनैन पढ़ी, कोई मर्द मिल जाए, जंगे सिद्दीक पढ़ी, कोई मर्द मिल जाए। मगर मिला तो एक जगह पर, हाय हाय, जहाँ आपके अकीदों का इम्तिहान है दोस्तों। देखिए, लोग ये कहते हैं कि ये चीजें पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर मेरे मौला ने ना पढ़ी होती तो हम भी ना पढ़ते। अगर इजाजत हो तो 2 बार सुना दूं, इजाजत हो तो 2 बार सुना दूं। जितने भी मासूम बिलखुसूस चौधरी इमाम और शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा दिया था, उस खुतबे को न खुतबा ट्रांसलेट करूंगा न मसला पेश करूंगा, मगर उसके मुकाबले में शायद शेर कहें वो तो मैं पढ़ूंगा। और उसके बाद इस लफ्ज़ मर्द की तस्दीक कर तमाम को मुबारकबाद बहुत कम है और मालूमात ज़्यादा है। खुसूसी तवज्जो रखिए, शहजादी ने यजीद के दरबार में, दरबार उसका, तख्त उसका, ताज उसका, हुकूमत उसकी, सल्तनत उसकी, लोग उसके, दरबार उसकी, हमारे उसके, मवाली उसके। ऐसे माहौल में बीवी ने जो खुतबा दिया है आप सोच नहीं सकते। बीवी ने खुतबा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अख़बरना बिन्नबुव्वति वस्तफ़ाना बिरिसालति वक़व्वजना बित्तिबाइ शहादति वंतक़ना बिहिकमति सरारन बिलवय्यि किबारन नानो मिन नस्लिल मुख्तार। और एक जुमला कहा कि हम नस्ल मुख्तार में से हैं। बीबी कौन है? मौला कायनात की बेटी। अगर वैसे वो मुहम्मद में शेर पढ़ता नहीं माजरत के साथ, मगर बात आ गई है, वक्त नहीं है, इसलिए सहारा ले रहा हूं। बीबी ने कहा, यजीद क्या तू समझता है, तू जब जीत गया तू तो उसी वक्त हार गया था जब मेरे भाई ने लोके नेता से सूरह कहफ की तिलावत फरमाई। हाय 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 हाय, यजीद तू तो उसी वक्त हार गया जब मेरे भाई ने लोके नेता से सूरह कहफ की तिलावत फरमाई। तू मेरा मुकाबला करेगा? रिसालत हमारे खानदान से, नबूवत हमारे खानदान से, भाई का सिलसिला हमारे घर में, सदा हमारे घर में, बहादुर हमारे घर में। हमारा छजरा, शजरे करीमा, तेरा छजरा, शजरे खमीसा, ये कौन कह रहा है? अली की बेटी शायद कहता है, नाम ज़ैनब है मेरा, रूह शरीयत में हूँ। हाय हाय, नाम ज़ैनब है मेरा, रूह शरीयत में हूँ। शेर की बेटी हूँ, अब्बास की गैरत में हूँ। हाय हाय, यजीद के दरबार में देखिए, लहजा देखिए, तेवर देखिए, अंदाज देखिए, कैफियत देखिए, शजाअत देखिए, हुनर देखिए, कैसे तोड़ा है यजीद को। नाम ज़ैनब है मेरा, रूह शरीयत में हूँ, शेर की बेटी हूँ, अब्बास की गैरत में हूँ।
دین ہوں، صبر ہوں، احباب کی عظمت میں ہوں، گیس میں آؤں تو حیدر کی شجاعت میں ہوں. بیت ملانا فرمائیے گا، گیس میں آؤں تو حیدر کی شجاعت میں ہوں. کیوں کہ آسمانوں کو زمینوں سے ملا جاؤں گی، میں بدے ہاتھوں سے تمہیں پہلا، میں بدے ہاتھوں سے تمہیں پہلا جاؤں گی. سارے نبیوں کے مقدر کا سکندر بن کر میں چلیے پڑو عباس دلاور بن کر ہر طرف برسوں کی تو فاطمہ پتھر بن کر شام کا تخت ہلا جاؤں گی حیدر بن کر. ہائے 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 ہائے، شام کا تخت ہلا جاؤں گی حیدر بن کر. تو رازے مریم کو کتابوں کی طرح کھولوں گی، سارے دربار میں حیدر کی طرح کھولوں گی. جیسے ہمارا ہونا چاہیے وہ نعرہ نہیں لگا ہے. نعرہ جب تک دل کی گہرائیوں سے نہ لگے، نعرہ سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. بہت دن صاحب نام زینب ہے میرا، روح شریعت میں ہوں، شیر کے بیٹے ہوں، عباس کی غیرت میں ہوں، دین و صبر محباب کی عظمت میں ہوں، گیس میں آؤں تو حیدر کی شجاعت میں ہوں، آسمانوں کو زمینوں سے ملا جاؤں گی، میں بدے ہاتھوں سے کوفے کو ہلا جاؤں گی. سارے نبیوں کے مقدر کا سکندر بن کر میں چلی اکبر و عباس و دلاور بن کر ہر طرف برسوں کی کفار کو پتھر بن کر شام کا تخت ہلا جاؤں گی حیدر بن کر. رازے طیب کو کتابوں کی طرح کھولوں گی، سارے دربار میں حیدر کی طرح کھولوں گی. نہ حسین، آئے ہائے نہ حسین تو زینب حسین بن کے چلی، اپنے بھائیوں کے مقصد کو پورا کیا ہے. نہ حسین تو زینب حسین بن کے چلی، قدم قدم کے بھتیجے گجائے بن کے چلی. علی کی بیٹی شہر مشرق ہے بن کے چلی. سمجھ لو بات ہے بدر ہونا ہے، فرمائیے گا سمجھ لو بات ہے بدر ہونا ہے بن کے چلی. امیر شام کو کر کے بیکار زینب نے یزیدیت تو کیا بے نقاب زینب نے. بس آگے بڑھ یزید تاکہ خجالت کو بھی مٹا نہ سکو. زمین ایسا ہوا پھر وہ سر اٹھا نہ سکا، دوبارہ آل محمد کا ظلم ڈھا نہ سکا، غرور اپنا زمانے کو وہ دکھا نہ سکا. علی کی بیٹی نے خطبے سے ایسا وار کیا، اسی کے تخت میں اس کو ذلیل خوار کیا. سلامت رکھے. ابھی تو سنو، جب میں نے مرد دیکھا یہاں تو نبی نے نہیں کہا، وہاں یہاں بھی نبی نے نہیں کہا، خندق یہاں بھی نبی نے نہیں کہا، جنگ بدر یہاں بھی نبی نے نہیں کہا، جنگ صفین یہاں بھی نبی نے نہیں کہا، جنگ نہروان یہاں بھی کسی نے نہیں کہا. مگر جب میں جنگ پڑھتے پڑھتے اتنی جنگیں عالم اسلام میں لڑ گئی، جب پڑھتے پڑھتے میں ایک ایسی جنگ کو پہنچا جہاں 39 دن تک لوگ جاتے رہے اور کامیاب نہیں ہوتے. وہاں 40-39 دن کی جب میں نے دیکھا رسول مایوسی کا عالم ہے، بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب کیوں پریشان ہو، کیا یہ روز جا رہے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا. تو کہا اچھا اعلان کر دو، کیا اعلان کرے سرکار؟ کا اعلان کر دو کل عالم مرد کو دوں گا. کسی مرد کے پیروکار کو شیعہ کہتے ہیں، کسی مرد کے تابع دار کو شیعہ کہتے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ کل علم میں کروں گا، کل
जंगलात बनूंगा, कमरात बनूंगा, मेरे फनात बनूंगा। सुना है ना आपने, कोई नई चीज नहीं बनूंगा, शादियां अलग होगा। सुनिए आप रसूल ने कहा मैं अलग बनूंगा। क्यों कहानियां मुफ्ती आपके सामने लिखा है, कहानियां मारने लगे दूसरे के। कहा कि भाई मर तो हदीर से होगा कोई, इसलिए कि अली तो बहुत दूर है, अली को नहीं आ पाएंगे, हम में से किसी एक को मिलेगा और जिसे मिलेगा जब हमें मजमा करना, हम भी आपके साथ रहेंगे। इसलिए कि अभी तक उम्र का किताब नहीं मिला, अब अलग के साथ मिलेगा। नहीं गौर किया आपने, अभी तक मर्द का खिताब नहीं मिला, मगर अब मर्द का खिताब मिलेगा हम में से किसी एक को। तो भाई हमारा ख्याल रखना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मगर तकदीर ने भी कहा कि हम उसे भेजेंगे जिसने अंबियाओं की मदद की, हम इसे भेजेंगे जिसने रसूलों की मदद की। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, अली उस साहब को कहते हैं जिस साहब ने हर अंबिया की मदद की है। नबी ने पुकारा, मौला क्या देखा तो बहुत सारे लोग खड़े, तुम भी गए थे जी सरकार, तुम भी गए थे जी सरकार, तुम भी गए थे जी सरकार। कितने दिन गए? 39 दिन। अब क्यों आए हो? क्या आपने तो कहा था लंबा कर लूंगा, आपने तो कहा था अलम मत दूंगा, और हमने तो मत देखा नहीं। कहा कि सरकार फिर कौन है मर्द? कहा कि इंतजार कर मर्द आ जाएगा। नबी ने नाम अली पढ़ी और एक जुमला कह दूं ताकि मुकम्मल बात वाज़ेह हो जाए। ये हवा जो हमें मिलती है अल्लाह की जानिब से, उलमाए इरफान कहते हैं कि हवा उस वक्त तक नहीं चलती, लोगों तक नहीं पहुंचती जब तक मौलाए कायनात के रोजे का तवाफ न कर ले। हाय 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 हाय, जब तक यही वजह है कि जब आप ज़ियारत करने जाएंगे पूछिए उलमा से, उलमा कहते हैं नजफ में सोना की इबादत, नजफ में सांस लेना की इबादत। अब जैसे रसूल ने कहा अच्छा तुम सब इकट्ठा हो गए, कोई बात नहीं हमें बुलाऊंगा। नबी ने पुकारा, नबी ने पुकारा, नबी के लबों से निकले हुए अल्फाज को हवा ने अपने दोस्त को उठाया और तेजी के साथ मदीने की सहरा में पहुंचाया। जैसे ही मौला अली ने रसूलुल्लाह की आवाज को महसूस किया, कहा कमर मेरा तलवार लाओ, मेरी तलवार लाओ। नहीं महसूस किया आपने? कहा कमर मेरी तलवार लाओ, मेरा तलवार लेके आओ। अब कमर तलवार लेके आ गए। क्या तलवार कौन लाएगा? गाजी मौला पहुंचे, दरवाजे पे तक बात किया। अभी कमर ने कहा नहीं, खुदवा पढ़ते हैं, अभी कमर ने कहा नहीं, कमर ने कहा नहीं तो आया हूं। दरवाजा खुला, पिंडा ने तलवार दे दी, हाथों में जोड़ के कहा शहजादी अभी तो मैंने कहा नहीं, मैं क्यों आया हूं? इतने दिन से अली के साथ रह रहा है, फिर भी अली की मार पर ना हो सकी। हाय 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 मेरे दोस्तों, इतने दिन अली के साथ रह रहा है फिर भी अली की मार पर ना हो सकी। का क्या मतलब? कहा तुमने वो रसूल की हदीस सुनी, हम और अली एक ही नूर के दोस्त से हैं। उसके बाद उस नूर से सब मासूम बनाए गए, सब एक ही नूर से बने हैं। याद है कब तक जब एक मासूम पुकारता है सारे मासूम सुन लेते हैं। जब एक मासूम पुकारता है सारे मासूम सुन लेते हैं। तलवार दी, मौला लीजिए, ले आया तलवार। उन्होंने कहा कहीं जाता है? कहा नबी बुला रहे हैं। खुदा की कसम, चाहने वाला हो तो ऐसा, मारने वाला हो तो ऐसा। कहा मौला नहीं बुलाए, मौला चाहे ठीक है, मौला चाहिए,
मगर दिल चाहता है मैं भी आपके साथ रहूं ना। कहा मेरे दिल में ख्वाहिश है, आरज़ू है, तमन्ना है, चलना चाहता है, आंखें बंद कर ले और मेरे बरस के निजाम को पकड़ ले। आंखें बंद कर, निजाम को पकड़। अब जैसे ही आंखें बंद की, चश्मे सदन में, अली खैबर में, चश्मे सदन में, अली खैबर में। और जब पहुंचा मेरा मौला तो रसूल ने कहा अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। वो सारा मजमा जो इंतजार कर रहा था, कहा बताओ भाई कैसे खबर पहुंचाई, हम तो अपने लिए सोच रहे थे, आज यहाँ के अली आ गए। जहाँ दे गोली, जहाँ दे गोली, जहाँ दे गोली। अब चलेगा कोई चारा नहीं है भाई, अब तो अली ही जाएंगे और अली ही खैबर का गिरफ्त अदा करेंगे। आपका सुना हुआ है सिर्फ 2 जुमले मुझे पढ़ने और मसाइल की तरफ वक्त हो गया तकरीबन, मसाइल की तरफ आना 2 जुमले पढ़ने। मौला अलैहिस्सलाम ने कहा क्या रसूल अल्लाह आप क्या चाहते हैं? कहा मैं चाहता हूँ खैबर का किला फतह हो, कहा हो जाएगा। ये है यकीन, ये है यकीन। आप जानते हैं नहीं किसे कहते हैं, आप जानते हैं नहीं किसे कहते हैं। ये शब्द ने तलाश किया, मेरी बात समझ नहीं आती। जो घुटनों का सूखी रोटियां तोड़ के खाता हो, हाय 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 हाय, जो घुटनों का सूखी रोटियां तोड़ के खाता हो, वो कैसे तलवार चलाता है? मैंने कहा बेवकूफ हो तुम। सूखी रोटियां तोड़कर अली अपनी कुवत से खाते थे, तलवार अल्लाह की कुवत से चलाते थे, अल्लाह की कुवत से चलाते थे। कहा नबी अल्लाह आप क्या चाहते हैं? कहा मैं चाहता हूँ कि जिला बताओ काम होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा जाओ अली, तुम्हारे दिल आप सुनते रहते हैं सर, मुझे 2 जुमले पढ़ने के। मौला की सवाल को पहुंचे किले के सामने, मरहब आया, अंतर आया, हारिस आया, ये सब आए। मौलाए कायनात ने सबको पास से लागू कर दिया, मगर एक जुमला मुझे पढ़ना है, एक जुमला। मैंने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद ये बताइए करबला में, उस्ताद ये बताइए क्या उनका मजहब तो इस्लाम नहीं था? तो फिर मान ये क्यों कहा कि सबके मुकाबले में जाना, मगर हैरत जिसका नाम हो उसके मुकाबले में जाना? उस्ताद ये फलसफा समझ नहीं आ रहा है कि मां को कैसे यही था जिसने वसीयत की बेटा तुम बहुत बहादुर हो, सबके मुकाबले में जाना, फिर इसका नाम हैदर, उसके मुकाबले मत जाना। उन्होंने कहा उसकी माँ इल्मे नुजूम की माहिर थी, सितारे करने लगती थी, जिसके जरिए से उसने अपने इल्म से अंदाजा लगाया कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है। मगर जिसका नाम हैदर होगा उसे आ जाएगा। सुन लिया आपने, अब जुमला सुन ले, जुमला पढ़कर मैं इसे रहमत को इंशाल्लाह तमाम कर देता हूँ। मरहब की माँ कौन है? काफिरा। मरहब कौन है? काफिर, मुशरिक, मुशरिक। मरहब कौन है? मुशरिक, मुशरिक। माँ क्या हुई? मुशरिका, 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 मुशरिका। अरे भैया उम्र मुशरिका के समझ में तो आ गया हैदर के मुकाबले में लगाना, लेकिन कोई और है जिसके समझ में नहीं आया, कोई और है जिसके समझ में नहीं आया। हो गई जंग। अब लोगों ने कहा वाह भाई इसमें आज कामयाबी नहीं है, अल्लाह अल्लाह। भाई देखो 39 तक हमने भी मेहनत की है, सीधा तो देखो हमें ज्यादा मिला चाहिए। भाई 39 दिन गए हैं, 39 दिन, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, 6 दिन गए, 7 दिन गए, 8 दिन गए, 39 दिन, 39 दिन। तो कुछ तो मिलेगा। अभी 1 दिन गए तो हमें थोड़ा सा मिलेगा। अब तारीख कहती है बहुत सारा माले गनीमत मिला, रसूल ने रख लिया, बैठ गए, कतार लगा लो, कतार लाइन लगा खड़े हो जाओ। साहबी आगे आया, उठाया एक हिस्सा, तुम भी आओ, उठाया एक हिस्सा, उठाया एक हिस्सा,
उठाया एक हिस्सा, उठाया एक हिस्सा, उठाया एक हिस्सा, उठाया एक हिस्सा, उसी में दे वाला है कहना। जैसे हम बनाया दोनों हाथों से उठाया, मौला अली को दिया, बस मिला गए, मिला गए। या रसूल अल्लाह ये कौन सी बात हो गई, हम 40 दिन गए, हमें एक हिस्सा, अली एक दिन गए 2 हिस्सा। रसूल ने कहा क्या मुस्लिम अली ये नहीं कहा कल आलम मर को दूंगा, हाय हाय कल आलम मर को दूंगा। क्या मतलब, कहा कुरान ही पढ़ा, क्या सरकार का मतलब, कहा कुरान ये ऐलान कर रहा है मर्द के 2 हिस्से होते हैं, औरत का एक हिस्सा होता है। समाज पढ़िए मोहम्मद देख रही है तो अली की देखो, और ये ऐसे तुमने नहीं कही सदा हिस्से तकसीम हुए। मुफ्ती जाफर साहब ने लिखा तकसीम हुआ, इतराज किया, जवाब रसूल ने फौरन दिया कि अगर अली ना आते तो इज्जतें लूट जाती, बेकार मोटा हो रहा था। मगर अली ने इस्लाम के परचम को बुलंद करके कहा रसूल घबराना नहीं, जब तक अली के पास कुव्वत है इस्लाम को कामयाबी मिलती रहेगी। और कामयाबी मिली बस अली खैबर के मैदान में कामयाब हुए। आओ भक्तन और मसीह की दुनिया से जनाब मोहम्मद के फजाइल सजात के मामले से 2 मिनट पढ़ना चाहता हूँ, सुनो। और तो पहले तौर पर ले जाओ कि अब्दुल्लाह बिन तेले ने किस जब में जंग की है। शायद कहता है कि जब आना मोहम्मद अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए, क्या मामूजा क्या जामेला किसने उन्हें सिखाया, जिसे हम कब्र बनी हासिल कहते हैं। कितने महात्म के का जंग लड़ना जाए, का जंग लड़ूंगा ऐसे लड़ूंगा कि लोग याद करेंगे। लिखा है, अजीब जुमला लिखा है कि जब औनो मोहम्मद फराक की जानिब चले हैं तो लोग आपस में अहमद से टकराने लगे। बहादुरी का ये मुकाम और ये मर्तबा आप जानते हैं, जंग का एक उसूल होता है, एक कानून होता है। सामने मैमना मैसरा काबा लश्कर 2 भाई, दोनों अब्दुल्लाह के बेटे, सैयद अब्दुल्लाह मौला के भाई थे। भाई हम 2 हैं, मैमना मैसरा काबा लश्कर। अब जुमला सुनना, अगर सदा शायद पढ़ सका जो मैं सुना रहा हूं, जो आज तक बोलता रहा हूं, तो महसूस करिएगा। 2 भाई 2 बेटे का भाई हम 2 हैं, सामने से 3 हिस्सा है, कैसे कवर करेंगे। खुदा की कसम बड़े भाई ने छोटे भाई ने कहा खजाना क्यों है, बिजली की तरह हमला करेंगे। हाय हाय बिजली की तरह हमला करेंगे। लिखा उन्होंने कि एक जानिब से मैमना से और मैसरा से मोहम्मद अब जो हमला किया है, मैमना को चिरा, मैसरा को चिरा, करने जैसा बजब के फौजे कूबे की दीवारों से टकराने लगी। और सबने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। लिखते हैं कि जब हमला किया तो कैफियत अजीब थी। आप मसाइल में सुनते हैं ना कि नहरिया कला पे कब्जा कर लिया, आप जाए करबला तो आप महसूस करें किस तरह कहां तक है। जो खुदा पहले थी आप जानते ही नहीं, सुन लीजिए, वक्त ज्यादा हुआ है, एक खत्म कर दे रहा हूँ। रिवायत ये है कि जब करबला में सारा वाक़या हो गया और चौथे इमाम आए इजाज़त इमामत से और बनी असद के मदद से शोधा को दफन किया, तो इमाम ने फुरात की तरफ रुक करके कहा आप तो पहले ही है, जब मेरा घर लुट गया, जब मेरा घर लुट गया, जब मेरे घर वाले शहीद कर दिए गए,
چھوٹے چھوٹے بچے پیاس پیاس کہہ کے روتے رہے. آپ علماء کہتے ہیں کہ نبی نے اپنا رخ موڑ دیا, بہت دور سے کرنے لگے. جب ہندوستان کے نواب امر کے گئے اور باہر جانے کے بعد دیکھا تو پانی کا تصور پیدا نہیں ہوتا تھا, تب انہوں نے کہا اس نہر فرات سے نہر الکما بناؤ جو غازی عباس کے روزے کے پیچھے آج بھی موجود ہے. حملہ کیا, قبضہ کر لیا. جیسے ہی قبضہ کیا فرات پر فوراً جناب عباس نے کہا اللہ اکبر. یہ آواز پہنچی کہا شہزادے زینب کے کام. معلوم تو کرو, تقدیر تو بنی. اب جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ اور محمد نے نہر پر قبضہ کر لیا, قبضہ کر لیا. فوجیں دور بھاگ گئی اسی طریقے سے جیسے جناب عباس گئے تھے تو بھاگی تھی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا, مراسی کا ٹولہ ہے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی کتنا اچھا ہوگا اگر سکینہ کی مسجد لے جاتے. بھائی کتنا اچھا ہوگا اگر سکینہ کی مسجد لے آتے. ہاں پانی پہ قبضہ کر لیا مگر دونوں شہزادوں نے پانی نہیں دیا. جیسے جناب فضا نے بڑا شہزادی فرات کا قبضہ کر لیا ہے, پر اتنا سننا تھا شہزادی سجدے میں گئی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا, پروردگار میری عزت رکھ لے, میری لاج رکھ لے, میرے بچے کے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو پیاس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پانی پی لیں. میں روزے بدل شہزادی کو کیا جواب دوں گی, مگر اللہ اللہ بچوں نے پانی کو دریا میں مار دیا. جنگ کرتے رہے, ایک لمحہ ہو میں آیا جب سلام علیکم کیا. عزیزوں بس پہ 2 جملے پڑھے